यस, मेटलर्जी विल कंप्लीट। ठीक है, देन विल डिस्कस डाउट्स। ठीक है, बाकी आई थिंक डाउट्स थोड़े पेंडिंग है। सॉल्ट एनालिसिस के डाउट्स पेंडिंग है क्या? कितना कर लिया था हमने? नहीं तो थोड़ा बहुत हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। HA1 तक ही किया है ना, HA2 HA3 वो पूरा कंप्लीट करेंगे सॉल्ट एनालिसिस। ठीक है, देन विल प्रोसीड फर्दर। ठीक है, तो लेट अस कंप्लीट मेटलर्जी फर्स्ट एंड देन विल प्रोसीड विथ, ठीक है, द डाउट डिस्कशन। नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ Fe फ्रॉम हेमाटाइट। ठीक है, हेमाटाइट और it is concentrated by gravity separation along with magnetic separation, and also roasting is carried out to remove the non-metal impurities and oxidize any FeO present. Hematite is mainly Fe2O3। अगर कुछ FeO प्रेजेंट है या Fe3O4 प्रेजेंट है तो उसको हम FeO में ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, Fe2O3 में ऑक्सीडाइज करते हैं बाई रोस्टिंग। तो gravity separation removes impurities, magnetic separation removes non-magnetic impurities, and roasting helps in removal of non-metal impurities and oxidation of FeO to Fe2O3. ठीक है, after obtaining concentrated Fe2O3, we mix it with calcium carbonate that acts as a flux and coke, ठीक है, which acts as a reducing agent. Then this mixture is smelted in a blast furnace. Smelting बताया था मैंने, smelting is heating above the melting point of metal. It results in formation of cast iron or pig iron. The cast iron has about 3 to 4% carbon, and pig iron has about 4 to 5% carbon. It is then purified using basimarization, which results in obtaining wrought iron or steel. Steel has around 0.1 to 1% carbon, and wrought iron has even less than 0.1% carbon. Wrought iron is the purest form of carbon, which has a very, very low percentage of carbon present in it. So this is a summary of extraction of iron. नेक्स्ट पेज में ब्लास्ट फर्नेस का कंस्ट्रक्शन और ब्लास्ट फर्नेस के रिएक्शंस में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, नोट कर लो पहले ये। I will send the recording link. Sorry, I forgot it. I will send the recording link today. ठीक है, I will not start D and F block today. ठीक है, we'll finish with metallurgy and we'll then do discussion. D and F block will start next time. ठीक है, हो गया? नोट्स कंप्लीट हो गया सबका? टर्न करूं पेज? ठीक है, जल्दी नोट करो।
there is no specific logic as to why it is called pig iron. ठीक है. ठीक है, टर्न करता हूँ अभी. नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट आई हैव एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस. ठीक है. And the reactions taking part in different zones in the blast furnace. This is a typical construction of blast furnace. ठीक है. blast furnace को हम different zones में divide कर सकते हैं. The bottommost part, ठीक है, is the part from where, ठीक है, iron and slag is collected. इसके थोड़ा सा ऊपर ध्यान से देखो, दो ऐसे pipes हैं left और right में. इन pipe से we pass a blast of hot air inside the furnace. ठीक है. This hot air results in combustion of carbon. सबसे ऊपर से हम हेमाटाइट का, लाइमस्टोन का और कोक का मिक्सचर ऐड करते हैं. ठीक है. उसको हम चार्ज बोलते हैं. द मिक्सचर ऑफ हेमाटाइट, concentrated hematite, limestone and coke is called as charge, which is poured from the top. ठीक है. As carbon falls down, it combines with hot air O2 to result in combustion reaction. तो सबसे नीचे वाले रीजन में combustion होता है, carbon plus oxygen burn to give CO2. It produces a large quantity of heat. It produces the heat required to sustain these temperatures required for the operation. तो सबसे नीचे highest temperature zone है around 2000 degree Celsius. Then temperature gradually decreases as we go higher up in the furnace. So upper part of furnace has a lower temperature, the lower part of furnace has a highest temperature. Roughly we can divide this furnace into 4 different zones. ऐसा कोई physical separation नहीं है. ठीक है. Just that we can divide the furnace into 4 zones because अलग अलग zones में अलग अलग reactions होते हैं. ठीक, अलग अलग part furnace के अलग अलग portions में अलग अलग reactions होते हैं. It's a very tall furnace, around 15 to 20 meters tall furnace. जिस फर्नेस में सबसे ऊपर से हम ये मिक्सचर पोर करते हैं, मिक्सचर ऑफ हेमाटाइट, लाइमस्टोन एंड कोक इज पोर्ड एंड सम रिएक्शंस अकर एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फर्नेसेस. ठीक है. सबसे नीचे वाले पार्ट में आयरन कलेक्ट होता है, उसके ऊपर वाले पार्ट में स्लैग कलेक्ट होता है. स्लैग इज लाइटर एंड फ्लोट्स एज द लिक्विड ओवर मोल्टन आयरन. ठीक है. तो रफली इट इज डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स. लोएस्ट जोन इज द जोन ऑफ कंबशन वेयर कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू गिव CO2. ठीक. नेक्स्ट जोन इज जोन ऑफ फ्यूजन. फ्यूजन का मतलब जहां मेल्ट होता है, जहां आयरन मेल्ट होगा और जहां स्लैग मेल्ट होगा. तो इट्स द जोन ऑफ फ्यूजन where Fe melts, iron melts, and the slag melts. And next is the zone of heat absorption or the zone of slag formation. Zone of heat absorption, calcium carbonate being added decomposes to give calcium oxide, and calcium oxide combines with silica impurities to give a slag of CaSiO3. In this zone, the carbon dioxide produced also combines with carbon to produce carbon monoxide. So some endothermic reactions take place in this zone. Therefore, it is also called as the zone of heat absorption. Slag is also being formed in this zone. So this zone is also called as the zone of slag formation. ठीक है, क्लियर है ये. बाकी के रिएक्शंस मैंने नेक्स्ट पेज में लिखा है, पहले इतना नोट कर लो.
देर आर नो डिफरेंट चैम्बर्स हियर, ठीक है, ध्यान से देखना। ऐसा कोई ऐसे अलग फिजिकली चैम्बर्स नहीं है, बस सबसे नीचे कंबशन हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ कंबशन हो रहा है वो हॉटेस्ट टेम्परेचर रीजन होगा, और धीरे धीरे ऊपर की तरफ टेम्परेचर कम होते जाता है, नीचे से हीट ऊपर की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, तो स्लोली एंड स्लोली टेम्परेचर डिक्रीजेस, ये अपने आप हो रहा है, ठीक है। जहाँ कंबशन हो रहा है वहाँ टेम्परेचर हाईएस्ट होगा, और ऊपर की तरफ धीरे धीरे हीट कम होता जाएगा, तो ऊपर की तरफ धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता जाएगा। Wrought iron, cast iron, pig iron are different types of carbon which mainly differ in the carbon content. Even steel is also a type of carbon. So these are different types of carbon which are different in their carbon content. Turn करूं page. ठीक है, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। टेम्परेचर्स एक रफ आइडिया होना चाहिए। टर्न करूं पेज।
नेक्स्ट देखो, some iron is also obtained in this zone. ठीक है, iron in the form of FeO is reduced by CO produced in this zone to give Fe and CO2. ये FeO कहाँ से आया? ये FeO zone of reduction में form होता है. ठीक है, zone of reduction में Fe2O3 is reduced to Fe3O4 and Fe3O4 is finally reduced to Fe. Some of Fe3O4 is also reduced to FeO, which gets reduced in zone 3, the zone of heat absorption. ठीक है, so this completes the extraction of iron from blast furnace. Blast furnace के सारे reactions हमने add summarize कर दिए यहाँ पे. ठीक है, clear है ये? कोई doubt है blast furnace वाले में? Next we'll study about extraction of Mg. ठीक है, magnesium is extracted by a process known as Dow's process. ठीक है, it is the extraction of magnesium from sea water. एक सिमिलर प्रोसेस है जो सोडियम के एक्सट्रैक्शन में यूज करते हैं, उसको डाउन्स प्रोसेस बोलते हैं. तो डाउन्स प्रोसेस इज एक्सट्रैक्शन ऑफ Mg एंड डाउन्स प्रोसेस इज एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम. डाउन में एक N आ गया, N स्टैंड्स फॉर Na. तो डाउन्स प्रोसेस इज एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम एंड डाउन्स प्रोसेस एक्सट्रैक्शन ऑफ Mg. इस तरह से याद कर सकते हो. ठीक है, इन द डाउन्स प्रोसेस the magnesium chloride from sea water is precipitated by adding slake lime. Slake lime add करेंगे, magnesium hydroxide का precipitate separate हो जाता है. ठीक है, then we react magnesium hydro or dissolve magnesium hydroxide precipitate in HCl solution, giving MgCl2 aqueous, which is crystallized to give crystals of hydrated magnesium chloride. Then this hydrated magnesium chloride is heated, ठीक है, to obtain anhydrous magnesium chloride, which is then electrolyzed, which is then fused and electrolyzed. आगे मैं next page में continue कर रहा हूँ, पहले इतना note कर लो. One second. I think iron is the 9th one. नहीं सॉरी, आयरन इज द 8th वन. ठीक है ठीक है, तो Mg का 9th वन लिख दो, मैंने नंबरिंग गलत कर दी है, वो नंबरिंग करेक्ट कर लो. Fe3O4, some Fe3O4 is reduced to FeO. Most of the Fe3O4 is reduced to Fe. Some Fe3O4 is also reduced to FeO. Fine. ये 9th नंबर हो जाएगा, ये करेक्ट कर लेना. ठीक है, ये नोट करो जल्दी से, मैं 1 मिनट आया.
Dawes process is continued in the next page. ठीक है, हो गया सबका, लिख लिया सबने? ठीक है, नेक्स्ट देखो, the MgCl2.6H2O, the hydrated magnesium chloride, is then heated in presence of dry HCl to obtain anhydrous magnesium chloride. It is important to heat in presence of dry HCl to prevent the hydrolysis of magnesium chloride. Okay? Once anhydrous magnesium chloride is obtained, it is mixed with sodium chloride and calcium chloride, fused, and then electrolyzed. And during electrolysis, we obtain magnesium at cathode and chlorine gas at anode. And magnesium is obtained in the liquid state. This liquid magnesium is then purified by distillation under reduced pressure to obtain pure magnesium. So this completes the extraction of Mg. Next, we'll do extraction of sodium. Sodium is the 10th one. Extraction of sodium from seawater is called Downs process. थोड़ा सा डिफरेंस है, एक डाउस प्रोसेस है और एक डाउन्स प्रोसेस है. ठीक है, इसमें सी वाटर को कॉन्सेंट्रेट करते हैं. ठीक, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए विल इवेपोरेट सम वाटर, देन विल कूल डाउन एंड देन विल पास ड्राई HCl or pure HCl. In presence of dry HCl, NaCl precipitates out because of common ion effect. Dry HCl will result in high concentration of Cl minus. High concentration of Cl minus will result in precipitation. So NaCl precipitates out. It is mixed with Kf, potassium fluoride. It is mixed with Kf. It is mixed with potassium fluoride, CaCl2, fused and then electrolyzed using graphite anode and iron cathode. Sodium metal is obtained at cathode. So this is all about the Downs process. ठीक है, फटाफट नोट कर लो ये. समझा ना? तो सोडियम मैग्नीशियम, these are reactive metals, और रिएक्टिव मेटल्स के लिए एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे? बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर फ्यूज्ड क्लोराइड्स. जनरली ऑक्साइड्स का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कराते हैं क्योंकि ऑक्साइड्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो हम क्लोराइड्स का जनरली फ्यूज करके क्लोराइड्स का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं. दे आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर फ्यूज्ड क्लोराइड्स rather than fused oxides. ठीक है, नोट कर लो ये जल्दी से.
हो गया। कॉमन आयन इफेक्ट वाला पॉइंट ये है, देखो मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ कॉमन आयन इफेक्ट वाला पॉइंट। ऐसे NaCl इज अ soluble salt, highly soluble, but concentrated NaCl solution में when we pass HCl gas through it, it results in precipitation of NaCl. Why it results in precipitation of NaCl? Because HCl will have high concentration of Cl minus. ऐसे सोच लो, रुको रुको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रुको। स्पेरिंगली soluble salts का solubility याद करो, when they dissolve they remain in equilibrium with their ions. तो NaCl की solubility बहुत हाई है, ठीक है। नॉर्मली NaCl डज नॉट फॉर्म precipitate, बट इन प्रेजेंस ऑफ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत बढ़ा देंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा, रिजल्टिंग इन प्रेसिपिटेशन ऑफ NaCl। तो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कॉमन आयन इफेक्ट, समझा ना। एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इंक्रीजेस, ठीक है, इट विल रिजल्ट इन प्रेसिपिटेशन ऑफ NaCl। टर्न करूं पेज। नेक्स्ट देखो, so this completes the study of extraction of different metals. Now we'll study about the Ellingham diagram, ठीक है। Ellingham diagram, it is a graph of delta G formation of oxides versus temperature, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए उनके ऑक्साइड्स का डेल्टा जी फॉर्मेशन हम टेम्परेचर के साथ प्लॉट करते हैं, एंड दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज एलिंगम डायग्राम, ठीक है। ये ग्राफ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक मेटल का एग्जांपल लिया है, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिविंग मेटल ऑक्साइड। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी मेजर करेंगे, जनरली डेल्टा जी वैल्यूज आर मेजर्ड per mole of oxygen. So we are plotting graph of delta G formation of oxide measured per mole of oxygen, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट का कंबशन इज जनरली, रिएक्शन विद ऑक्सीजन इज कंबशन, इज जनरली एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन गिविंग मेटल ऑक्साइड, द रिएक्शन विल बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो डेल्टा एच इज नेगेटिव, ठीक है। मेटल रिमेन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, मेटल ऑक्साइड एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, ऑक्सीजन इज गैसियस। तो इस रिएक्शन में देखेंगे during the reaction the gaseous moles decrease, reactant has one gaseous mole, product has no gaseous moles, so delta n for gases is negative, so delta s will be negative, entropy decrease in the reaction। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है। नाउ एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो डेल्टा जी कैन बी रिटन एज माइनस डेल्टा एस इंटू टी प्लस डेल्टा एच। So minus delta S will be the slope of the graph of delta G versus temperature, and delta H will be the intercept, ठीक है। delta H will be the intercept. So graph of delta G versus temperature will be a straight line graph with slope is equal to minus delta S and intercept is equal to delta H. Intercept is negative because delta H is negative and slope is positive because delta S is negative, ठीक है। तो मैंने ये जो ग्राफ ड्रॉ किया है, यहाँ पे मेटल का भी ग्राफ ड्रॉ किया, कार्बन का भी ग्राफ ड्रॉ किया, दो अलग अलग ग्राफ्स ड्रॉ किए हैं और कुछ पॉइंट्स मैंने अलग से मार्क किए हैं, ठीक है। मेटल ऑक्साइड का ग्राफ ड्रॉ किया जिसमें हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, टेम्परेचर T1 पे स्लोप इंक्रीज हुआ है। ये सब पॉइंट्स मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, पहले इतना नोट कर लो। पहले तो मेटल ऑक्साइड का ग्राफ समझा कि नहीं समझा, ठीक है। एटलीस्ट इतना पार्ट तो समझा होगा कि स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट नेगेटिव है, दिस इज द नेगेटिव इंटरसेप्ट और स्लोप इज पॉजिटिव। देखो डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, डेल्टा जी को वाई एक्सिस में प्लॉट किया, टेम्परेचर को एक्स एक्सिस में, स्लोप इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू सी। तो स्लोप माइनस डेल्टा एस है, डेल्टा एस नेगेटिव है तो स्लोप पॉजिटिव हो गया, इंटरसेप्ट इज डेल्टा एच और डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव है तो इंटरसेप्ट नेगेटिव हो गया, ठीक है, समझा। नेगेटिव इंटरसेप्ट एंड पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ बनाना है, आया समझ में। Yes, we'll finish metallurgy by today.
Yes, you can attempt booklet questions now. Delta G should be measured for 1 mole of oxygen. ठीक है, एक्चुअली ऑक्साइड्स का फॉर्मूला अलग अलग हो सकता है. वी कैन हैव एन ऑक्साइड विच हैज अ डिफरेंट फॉर्मूला. जैसे अभी देखो, ध्यान से देखो, एक सेकंड रुको. वाई स्लोप इज चेंजिंग, ये वाला पॉइंट मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा. पहले पर मोल ऑफ ऑक्सीजन का क्या सिग्निफिकेंस है ये समझो. मान लो ऑक्साइड इज M2O3, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिविंग M2O3. तो रिएक्शन विल बी बैलेंस्ड फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन. ऐसे ये बैलेंस रिएक्शन है, तो विल ट्राई एंड बैलेंस द रिएक्शन फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन. कैसे? ठीक है, जब इसको 1 मोल के लिए बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 M2O3, ये 4/3 M और 1O2. So we'll try and write the reaction in such a manner that reaction has only 1 mole of oxygen. So it is a graph of delta G measured per mole of oxygen. समझा? I'll explain the significance of these temperatures T0, T1, T2, etc. ये तीनों temperatures का significance मैं अभी explain करता हूँ. ठीक है? T2 का significance यही explain करता हूँ. There will be a temperature at which the graph will intersect with the x-axis. So T2 is the point of intersection of the graph with x-axis. तो T2 से lower temperature पे delta G negative है और T2 से higher temperature पे delta G positive है. delta G positive मतलब ऑक्साइड विल बिकम अनस्टेबल. जिस कंपाउंड के लिए डेल्टा जी फॉर्मेशन इज नेगेटिव, उस कंपाउंड का फॉर्मेशन स्पॉन्टेनियस या फिजिबल प्रोसेस है. और जिस कंपाउंड के लिए डेल्टा जी फॉर्मेशन पॉजिटिव है, दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ दैट कंपाउंड इज नॉट फिजिबल. तो दैट कंपाउंड डिकम्पोजेज एट दैट टेम्परेचर. तो जहां पे भी ग्राफ एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट करेगा, जिस टेम्परेचर के बाद डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, उस टेम्परेचर को हम डिकम्पोजिशन टेम्परेचर बोलते हैं. तो T2 is the decomposition temperature of metal oxide. Beyond temperature T2, its delta G formation will become positive. ठीक है, delta G formation becomes positive. So beyond temperature T2, the metal oxide will decompose. At less than temperature T2, metal oxide is stable. At exactly T2, there will be an equilibrium between metal oxygen and metal oxide. Clear है ये? Why reaction of carbon is a straight line मैं बताऊंगा आगे, explain करूंगा. T2 का मतलब समझा? T0 और T1 का क्या सिग्निफिकेंस है आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं. इस पेज में जितना लिखा है उतना समझा. ग्राफ के कुछ और पॉइंट्स में आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं. मैं वापस से प्रीवियस पेज पे आऊंगा, पहले इतना नोट कर लो. टर्न करूं पेज. देखो आगे देखो. T1 इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, ये जो T1 जो टेम्परेचर है ना, दिस T1 टेम्परेचर इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल. सोचो मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होगा. ठीक है, एट मेल्टिंग पॉइंट जो मेटल सॉलिड है, द सॉलिड विल मेल्ट टू गिव अ लिक्विड. ठीक, मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड लिक्विड में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो रिएक्टेंट्स की एंट्रोपी और ज्यादा बढ़ जाएगी. रिएक्टेंट्स की एंट्रोपी पहले से हाई थी क्योंकि रिएक्टेंट में गैसेस थे. अभी रिएक्टेंट का एक सॉलिड भी लिक्विफाई होगा तो रिएक्टेंट की एंट्रोपी बढ़ गई, मतलब डेल्टा एस विल बिकम मोर नेगेटिव. तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एस इंक्रीजेस. तो एट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल the magnitude of delta S increases, delta S becomes more negative. Delta S becomes more negative, so magnitude of slope increases. Therefore, at temperature equal to T1, the slope increases. समझा ये point? टेम्परेचर T1 का सिग्निफिकेंस समझा सबको? ध्यान से सुनो.
मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल पे मेटल मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। मेटल मेल्ट हो जाएगा मतलब रिएक्टेंट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो रिएक्टेंट्स की एंट्रोपी बढ़ेगी। प्रोडक्ट की एंट्रोपी उतनी ही है, कोई खास चेंज नहीं हो रही क्योंकि प्रोडक्ट अभी भी सॉलिड है, ठीक है। तो मेटल मेल्ट हो गया, रिएक्टेंट्स की एंट्रोपी बढ़ गई, तो डिफरेंस इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज। तो डेल्टा एस विल बिकम मोर नेगेटिव, delta s will become more negative, that means slope will become more positive, slope becomes more positive, slope increases, ठीक है। तो therefore at temperature T1 slope will increase। भाई m नेगेटिव नहीं है, m इज माइनस डेल्टा s, और डेल्टा s नेगेटिव है तो माइनस डेल्टा s पॉजिटिव है, ठीक है। अभी टर्न करके मैं आगे समझाता हूं। नेक्स्ट देखो, A point T1 is the melting point, at melting point of metal, metal melts, entropy of reactants increase, ठीक है। तो delta SF will increase, delta S increases, magnitude of delta S increases, slope increases। Similarly अगर metal oxide melt होगा तो क्या होगा, अगर metal oxide melt होगा तो प्रोडक्ट की एंट्रोपी बढ़ेगी, प्रोडक्ट की एंट्रोपी बढ़ेगी तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एंट्रोपीज में डिफरेंस कम हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एस विल डिक्रीज, स्लोप विल डिक्रीज। ऐसा जनरली होता नहीं है, मेटल ऑक्साइड्स जनरली हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड मेटल ऑक्साइड डू नॉट मेल्ट बिफोर डिकम्पोजिशन ऑफ द मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड मेल्ट होगा ऐसा बहुत रेयर आता है, मेटल ऑक्साइड्स की मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, ठीक है। तो अगर मेटल ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट आएगा तो उस टेम्परेचर पे स्लोप कम हो जाएगा। So at the melting point of metal, slope increases. At the melting point of metal oxide, slope will decrease. Okay? Or at the boiling point of metal also, slope will further increase. तो melting point पे slope increase होता है, boiling point पे भी slope increase होगा। metal के melting point और metal के boiling point पे slope will increase. metal oxide के melting point पे slope will decrease. समझा सबको? T2 is the decomposition temperature. T2 पहले भी explain किया था मैंने, decomposition temperature of oxide. It is the point of intersection of graph with the x-axis. अनिरुद्ध, what do you mean by limiting value of slope? मतलब टी नॉट का मतलब समझा रहा हूँ, वेट करो। मैक्सिमम ऐसा मिनिमम कुछ डिफाइन नहीं है, बट स्लोप विल इंक्रीज व्हेन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल इज रीच्ड और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल इज रीच्ड, ठीक है। मिनिमम जीरो भी हो सकता है, स्लोप में भी नेगेटिव ऑल्सो। जीरो स्लोप का एक एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड। अभी फॉर्मेशन ऑफ CO2 देखो, formation of carbon dioxide, carbon plus oxygen giving CO2, reactant has one gaseous mole and product also has one gaseous mole। तो reactant में भी एक मोल गैस है, प्रोडक्ट में भी वन मोल गैस है, दोनों में वन मोल गैस है, तो डेल्टा एन जी जीरो, चेंज इन गैसियस मोल्स इज जीरो, गैसियस मोल्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर गैसियस मोल्स इक्वल हैं तो डेल्टा एस इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, अगर डेल्टा एस अप्रोक्सीमेटली जीरो है तो स्लोप इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, स्लोप इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, तो दैट मींस ग्राफ विल बी एन हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो CO2 का ग्राफ क्यों हॉरिजॉन्टल है समझा? तो एक बार प्रीवियस पेज पे वापस से ग्राफ देख लो, CO2 का ग्राफ हॉरिजॉन्टल बनाया था मैंने, बिकॉज CO2 के लिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन गिविंग CO2 के लिए डेल्टा एस अप्रोक्सीमेटली जीरो, जिसका ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा विद अ जीरो स्लोप। ग्राफ विल चेंज स्लोप एट द चेंज ऑफ स्टेट। फिजिकल स्टेट जब भी चेंज होगा, या तो मेटल का या तो मेटल ऑक्साइड का, तो स्लोप चेंज होगा।
देखो इस रिएक्शन में डेल्टा एस नेगेटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है मतलब रिएक्टेंट की एंट्रोपी हाई है, प्रोडक्ट की एंट्रोपी लो है। अगर रिएक्टेंट की एंट्रोपी को हाई से और हायर करेंगे और ज्यादा बढ़ाएंगे तो डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। अगर प्रोडक्ट की एंट्रोपी लो से हाई करेंगे तो डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। तो व्हेन मेटल कन्वर्ट्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीजेस, रिएक्टेंट्स का एंट्रोपी और हाई होगा तो डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। ठीक है। And when product's entropy increases from low to high, the magnitude of delta S decreases. समझा? तो डेफिनेटली स्लोप विल चेंज सडनली, मोर और लेस सडनली, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फेज चेंज होगा, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या सॉलिड से डायरेक्ट गैस। कार्बन का कांस्टेंट कैसे हुआ? कार्बन का रिएक्शन देखो, C+O2 गिविंग CO2, तो डेल्टा एन इज जीरो, डेल्टा एन जी इज जीरो, तो स्लोप इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, स्लोप इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, तो ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, पहले ये पेज नोट कर लो, फिर प्रीवियस पेज शो करूंगा, जल्दी नोट करो। भाई अभी कार्बन डाइऑक्साइड का ही पढ़ रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी ग्राफ पढ़ेंगे, क्यों परेशान हो रहा है इतना? ठीक है, पहले कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन का ग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का भी पढ़ लेंगे। ठीक है, हो गया, ये नोट कर लिया सबने? अरे बाबा इतना पढ़ लेना भाई, सारे रिएक्शन का पढ़ना होगा, तूने पूछा तो बताया मैंने, बेवकूफ कहीं का। पढ़ ले पहले इतना जितना पढ़ा रहा हूं। एक बार प्रीवियस पेज देख लो फटाफट। देख अनीशा, मेटल ऑक्साइड, 1 सेकेंड, मेटल ऑक्साइड में रिएक्शन क्या है? मेटल प्लस ऑक्सीजन गिविंग मेटल ऑक्साइड। मेटल सॉलिड है, मेटल ऑक्साइड भी सॉलिड है, बट ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, तो गैसियस मोल्स कम हो रहे हैं, देयरफॉर एंट्रोपी विल डिक्रीज। यही पूछना था क्या? डेल्टा एस कैसे नेगेटिव है मेटल ऑक्साइड का, समझा ये? ठीक है, नेक्स्ट देखो, let us understand the reduction of metal oxide by carbon। कार्बन रिडक्शन में यही करते हैं ना, मेटल ऑक्साइड को कार्बन से रिड्यूस करेंगे। ठीक है, ये जो पढ़ा रहा हूँ ना भाई भूभरत, ये सब आईआईटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ ऐसे टाइम पास के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, कि मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है और मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, metal oxide by carbon, metal plus oxygen giving metal oxide, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों का डेल्टा जी फॉर्मेशन लिखा हमने। सपोज करो रिएक्शन टू में से रिएक्शन वन सब्ट्रैक्ट करते हैं। इफ रिएक्शन वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रिएक्शन टू माइनस रिएक्शन वन, तो द नेट रिएक्शन विल बी मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन गिविंग मेटल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, effectively metal oxide is reduced by carbon to give metal and carbon dioxide. For the net reaction we can write delta G as delta G reduction. ठीक है, तो पहला रिएक्शन और दूसरे रिएक्शन टू माइनस रिएक्शन वन किया हमने। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन में से रिएक्शन वन सब्ट्रैक्ट किया, द नेट रिएक्शन कम्स आउट टू बी रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाई कार्बन will be delta G2 minus delta G1 or delta G formation of CO2 minus delta G formation of metal oxide. Okay. We can say that reduction is spontaneous or reduction is feasible if delta G reduction is less than 0. Reduction is spontaneous if delta G reduction is less than 0, and delta G reduction will be less than 0 when delta G formation of CO2 is less than delta G formation of MO2. So we can say that carbon can be used to reduce metal oxide if delta G formation of carbon dioxide is less than delta G formation of metal oxide. समझा ये point? Carbon can be used to reduce, ठीक है, metal dioxide if delta G formation of CO2 is less than delta G formation of MO2. ये वाला point समझा? Reduction is spontaneous वाला part. For a spontaneous reaction, for a feasible reaction, delta G reaction should be less than 0. And reduction, carbon reduction is spontaneous if delta G formation of carbon dioxide is less than delta G formation of metal oxide. Is it understood? एक बार वापस से मैं प्रीवियस डायग्राम पे आता हूँ। देखो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का डायग्राम ड्रॉ किया है और मेटल डाइऑक्साइड का डायग्राम ड्रॉ किया है। ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला, जब कार्बन डाइऑक्साइड का डेल्टा जी मेटल डाइऑक्साइड के डेल्टा जी से कम होगा देन ओनली कार्बन रिडक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। हियर कम्स द सिग्निफिकेंस ऑफ टी नॉट। अभी टेम्परेचर टी नॉट का सिग्निफिकेंस समझेगा। ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टेम्परेचर? बिलो दिस टेम्परेचर it is the metal oxide which has a lower delta G formation. So below this temperature, carbon reduction is not spontaneous or carbon reduction is not feasible. But above this temperature, CO2 का delta G formation से कम है, so it is only beyond this temperature that carbon reduction becomes spontaneous. समझा क्या ये point? So this is the significance of temperature T naught. ओके, हटाऊं ये डायग्राम? अभी वापस से आ जाते हैं। जो पॉइंट्स लिख रहे थे मैं टी नॉट के बारे में, वापस लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो रिडक्शन इज स्पॉन्टेनियस इफ delta G reduction is less than 0 or delta G formation of CO2 is less than delta G formation of metal dioxide. In short, we can say that the element whose oxide has a lower delta G formation can reduce another oxide which has higher value of delta G formation. So if carbon dioxide has a lower delta G formation, then carbon can be used to reduce metal dioxide. Or in other words, we can write the substance that is lower in the Ellingham diagram can reduce the oxide that lies higher in the Ellingham diagram. The substance that lies lower in the Ellingham diagram can reduce the oxide that lies higher in the Ellingham diagram. Clear है ये point? Theoretically, yes. Every substance can be reduced
ठीक है, बाय कार्बन रिडक्शन। ठीक है, कुछ मेटल्स के लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड विल बी वेरी वेरी हाई विच कैन नॉट बी प्रैक्टिकली ऑब्टेन्ड। 1000 degrees Celsius, 2000 degrees Celsius, up to that we can achieve. Beyond that, it becomes very expensive and difficult to achieve temperatures beyond that. ठीक है, टर्न करूं पेज। नेक्स्ट देखो वही पॉइंट लिखा है मैंने, टी नॉट इज द टेम्परेचर करेस्पॉन्डिंग टू विच द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ MO2 and CO2। ठीक है, टेम्परेचर corresponding to the point of intersection of graphs of metal dioxide and carbon dioxide is the T naught temperature. We can say that at temperatures greater than T naught, reduction of MO2 by carbon becomes feasible। ठीक है, एक बार प्रीवियस पेज फिर से देख लो, फटाफट जल्दी लिख लो, जब मैं बोल रहा हूँ टर्न करो तो बता दो मुझे क्या करना है। हो गया, नोट कर लिया। So T naught is the temperature corresponding to the point of intersection of CO2 and MO2 graphs. At temperatures greater than T naught, the reduction of metal oxide becomes feasible. At temperatures less than T naught, reduction of metal oxide by carbon is not feasible। Now with the help of diagram, we'll try and compare stability of CO2 and CO। ठीक है, तो यहाँ पे हम कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ एक साथ बनाएंगे। एक्चुअली तीन अलग अलग ग्राफ बना हुआ है, इसमें से पहले लेट अस अंडरस्टैंड द ग्राफ ऑफ CO एंड CO2। ठीक है, CO2 का ग्राफ तो पहले ही एक्सप्लेन किया था मैंने। ठीक, दिस इज द CO2 ग्राफ, ये CO2 का ग्राफ है। अभी CO का ग्राफ देखो, CO का ग्राफ क्या है, 2 carbon plus oxygen giving 2 CO। we have to write the equation for 1 mole of oxygen। ठीक है, ये भी incomplete combustion of carbon है। incomplete combustion will result in evolution of heat, but the heat release is less than complete combustion of carbon। ठीक है, तो थोड़ा कम हीट रिलीज होता है इधर। ठीक है, slightly less heat is evolved here। ठीक है, 2C plus O2 giving 2CO, तो डेल्टा H इज लेस नेगेटिव, बट डेल्टा S का वैल्यू अगर चेक करेंगे तो reactant has 1 mole of gas, product has 2 moles of gas। तो as reactant has less gaseous moles, product has more gaseous moles, so delta Ng has a positive value। delta Ng has a positive value, gaseous moles increase during the reaction, so delta S has a positive value। as delta S has a positive value, okay, we say that slope of the graph becomes negative। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्राफ इट हैज अ नेगेटिव स्लोप, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ हैज अ जीरो स्लोप। दे इंटरसेक्ट एट टेम्परेचर सपोज TA। जिस टेम्परेचर पे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है उस टेम्परेचर को मैंने सपोज TA लिखा है। ठीक है,
समझाना सबको? इज इट अंडरस्टूड? तो टेम्परेचर TA इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ CO एंड CO2। टेम्परेचर TA से लोअर टेम्परेचर पे देखेंगे तो CO का डेल्टा G कम नेगेटिव है और CO2 का डेल्टा G ज्यादा नेगेटिव है, बट अबव टेम्परेचर TA इट्स कार्बन मोनोऑक्साइड हुज डेल्टा G बिकम्स मोर नेगेटिव। तो वी कैन से दैट हायर टेम्परेचर्स पे कार्बन मोनोऑक्साइड बिकम्स मोर स्टेबल। जिस ऑक्साइड के लिए डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है उसका फॉर्मेशन ज्यादा फेवरेबल होगा। तो हायर टेम्परेचर पे कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन ज्यादा फेवरेबल है, लोअर टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन ज्यादा फेवरेबल है। ये टीए का वैल्यू क्या मैं देख के बता देता हूँ, एक सेकंड रुको। अराउंड 700, द टेम्परेचर इज अराउंड 700 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टीए इज अराउंड 700 डिग्री सेल्सियस। Value of this TA is approximately 700 degrees Celsius, between 600 and 800। टर्न करूं पेज? जल्दी नोट करो। नेक्स्ट वही पॉइंट्स मैंने लिखाया है कि टेम्परेचर्स ग्रेटर देन TA डेल्टा GF ऑफ CO इज मोर नेगेटिव देन डेल्टा GF ऑफ CO2। तो हायर टेम्परेचर्स पे CO इज मोर स्टेबल देन CO2, whereas at temperatures less than TA delta GF of CO is less negative than delta GF of CO2। thus at lower temperature CO2 is more stable than CO। ठीक है, इसके बाद मैंने ग्राफ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 फ्रॉम CO भी एक्सप्लेन किया है। इन द ग्राफ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 CO प्लस O2 गिव्स 2CO2। इसके लिए भी डेल्टा H नेगेटिव है और डेल्टा S भी नेगेटिव है। डेल्टा S भी नेगेटिव है यानी स्लोप इज पॉजिटिव। तो CO प्लस O2 गिविंग CO2 का ग्राफ इट विल हैव अ पॉजिटिव स्लोप, जैसा प्रीवियस पेज में ड्रॉ किया मैंने। ठीक है, CO प्लस O2 गिविंग CO2। ठीक है, इसका ग्राफ पॉजिटिव स्लोप का आएगा, सिमिलर टू मेटल्स। So CO plus O2 giving CO2, the graph has a positive slope. The intersection point is same as the point of intersection between CO2 and CO graphs. ठीक है,
तो 2CO plus O2 giving 2CO2, delta S is negative. Right? Although delta H combustion of CO per mole is less than delta H combustion of carbon per mole, but delta H combustion of 2 moles of CO will be more. So therefore, for the graph of CO and oxygen, it has a more negative value of delta H. As in the previous page, check for the intercept value. किसका intercept ज़्यादा negative है? Intercept of CO plus O2, it has more negative value. ठीक है, तो CO का ग्राफ ज़्यादा negative value से start होता है and has a positive slope. ठीक है, clear है ये? तो ग्राफ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 फ्रॉम CO भी हो गया, नोट कर लो जल्दी से. यस, दिस इज द लास्ट PDF. ठीक है, टर्न करूं पेज. ओके. नेक्स्ट देखो, एलिगम डायग्राम फॉर डिफरेंट मेटल्स. दो अलग अलग मेटल्स के लिए डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो स्लोप मोर और लेस सेम आता है, बिकॉज वी आर ड्रॉइंग द ग्राफ फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन. तो स्लोप इज मोर और लेस सेम. जनरली जो मेटल ऊपर आता है दैट मेटल इज द लेस रिएक्टिव मेटल, और जो मेटल नीचे आता है दैट मेटल इज द मोर रिएक्टिव मेटल. मोर रिएक्टिव मेटल्स विल फॉर्म मोर स्टेबल ऑक्साइड्स. लेस रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड्स कम स्टेबल होते हैं, दे डिकम्पोज एट अ लोअर टेम्परेचर. ठीक है, जिन जैसे मर्क्यूरी ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, दे इजीली डिकम्पोज, whereas reactive metals, their oxides are very stable, they decompose at much higher temperatures. तो less reactive metal के oxides का delta G, ठीक है, value will be less negative. More reactive metal oxides का delta G will be more negative. तो ऐसे दो अलग अलग मेटल्स के लिए ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा. लेस रिएक्टिव मेटल का ग्राफ ऊपर आएगा, मोर रिएक्टिव मेटल का ग्राफ नीचे आएगा. ठीक है.
ये एक्सप्लेन किया मैंने. मेटल 1 ऑक्साइड विल बी लेस स्टेबल, मेटल 1 इज द लेस रिएक्टिव मेटल, and metal 2 oxide will be more stable, hence metal 2 is the more reactive metal. Graphs are almost parallel if both metal and metal oxides are in the solid state. ठीक है, क्लियर है ये? हो गया, नोट कर लिया सबने? Metal 1 oxide is less stable. That means metal is less reactive. Metal has less tendency to form compounds. ठीक है, एक सेकेंड रुकना. ठीक है, हो गया ये मेटलर्जी. ठीक है, अभी डाउट्स कर लेते हैं, सॉल्ट एनालिसिस के डाउट्स कर लेते हैं. ठीक है, दोज हु वांट टू लीव यू मे लीव. ठीक है, बाकी अभी बस डाउट्स डिस्कस करेंगे. एक बार प्रीवियस पेज देख लो जिसको देखना है. ठीक है, अभी डाउट्स कर लेते हैं एक बार. रुको, मुझे ये बंद कर रहा हूँ. ठीक है ना, क्लोज करूँ इसको.
HA3 अटेम्प्ट किया है तुम लोगों ने क्या? HA3 कुछ क्वेश्चंस मैंने क्लास में कराए थे ना, सॉल्ट एनालिसिस का। कितने क्वेश्चंस कराए थे मैंने? आई थिंक फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्वेश्चंस करा दिया था मैंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। क्या क्या पेंडिंग है, चलो वो खत्म कर लेते हैं पहले, HA3 वाले क्वेश्चंस खत्म कर लेते हैं। आई थिंक सभी डिस्कस कर लिया है मैंने। चलो ठीक है, HA2 के डाउट्स पूछ लो पहले तो। HA2 में डाउट्स बोलो, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। HA2 के डाउट्स क्वेश्चन नंबर 1 to 5। HA2 का क्वेश्चन नंबर 4 करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखो ध्यान से। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ Na2S CuS ZnS। देखो लॉजिकली समझो, ऑल अल्कली मेटल सॉल्ट्स आर सॉल्युबल, तो Na2S तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा। ठीक है, इसके बाद कॉपर सल्फाइड और जिंक सल्फाइड ऐसे याद करेंगे, मैंने बताया था कि जिनका ग्रुप नंबर हायर होता है उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, जिनका ग्रुप नंबर लोअर है उनकी सॉल्युबिलिटी कम है। तो लेस soluble salts are separated first, तो कॉपर सल्फाइड विल बी लेस soluble than जिंक सल्फाइड। तो ऑर्डर आ जाएगा, solubility ऑर्डर Na2S ग्रेटर देन ZnS ग्रेटर देन CuS। समझा? क्वेश्चन नंबर 4 समझा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 भी पूछ रहा है रुपेश। Which of the following pair of ions cannot be separated by H2S in dilute HCl? To separate them, one of them should precipitate, other should not precipitate। तो अगर ए ऑप्शन देखेंगे तो ए ऑप्शन में बिस्मथ और टिन दोनों ग्रुप 2 का है, तो दोनों प्रेसिपिटेट बना देगा, दोनों को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो ए ऑप्शन कैनॉट बी सेपरेटेड, डिस्टिंग्विश नहीं पूछा है, कैनॉट बी सेपरेटेड पूछा है। तो अगर दोनों सेम सॉल्यूशन में है, H2S पास करेंगे, देखेंगे तो एल्यूमिनियम ग्रुप 3 का, एल्यूमिनियम विल नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट, मर्क्यूरी विल फॉर्म प्रेसिपिटेट, दे कैन बी सेपरेटेड। कॉपर और जिंक देखेंगे तो जिंक ग्रुप 4 का है, कॉपर ग्रुप 2 का है, तो H2S in acidic medium will precipitate copper, will not precipitate zinc, copper and zinc can be separated, and similarly copper and nickel can also be separated। समझा क्वेश्चन नंबर 1? ठीक है, नेक्स्ट डाउट बोलो, क्वेश्चन नंबर 5 to 10। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? क्या डाउट है अस्ट्रा इसमें? 9 तो क्लियर है ना, Fe2+ गिव्स अ ब्राउन कलर विथ अमोनियम थायोसाइनेट, गलत है ये। Fe2+ गिव्स नो कलर विथ थायोसाइनेट सॉल्यूशन, अलग से कराया मैंने ये KSCN या NH4SCN के साथ। Fe2+ विथ KSCN और NH4SCN, नो रिएक्शन। एक सेकेंड, बोलो। Sir, in this question, B हम्म, option is correct, but C option is also correct, na sir? Because Fe3 एक plus सेकेंड, gives. बी ऑप्शन इज करेक्ट। Fe2+ गिव्स ब्लू प्रेसिपिटेट विथ पोटेशियम फेरीसाइनेट, यस इट गिव्स टर्नबुल्स ब्लू प्रेसिपिटेट। ठीक है, एक Sir, सेकेंड। but C also. Fe3+ gives brown coloration with potassium ferrocyanide, ये wrong है। पोटेशियम फेरीसाइनाइड के साथ it gives brown coloration, it gives blue precipitate with potassium ferrocyanide। C option is wrong, it gives brown color with potassium ferricyanide, it gives a blue precipitate with potassium ferrocyanide। समझा? Okay, sir. Yes, understood. क्वेश्चन नंबर 10, प्रियांश को डाउट है, क्वेश्चन नंबर 10, which of the following reagents may be used to identify strontium ions in presence of calcium ions? मतलब स्ट्रोंशियम और कैल्शियम दोनों प्रेजेंट है, स्ट्रोंशियम प्रेसिपिटेट बनना चाहिए, कैल्शियम नहीं बनना चाहिए। अमोनियम सल्फेट, SrSO4 का प्रेसिपिटेट बनता है, कैल्शियम सल्फेट इज नॉट प्रेसिपिटेटेड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम आयंस। ठीक है, किया तो है हमने ये। समझा प्रियांश? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 to 15।
वेदांत को डाउट है 11th में। ये क्रोमियम का टेस्ट है, Na2O2 ऑक्सीडाइजेस और बेसिक मीडियम में क्रोमियम विल बी ऑक्सीडाइज टू फ्रॉम +3 to +6, क्रोमियम +3 इज ऑक्सीडाइज टू क्रोमियम +6। ये ए ऑप्शन आएगा 11th का, ए ऑप्शन। क्रोमियम +3 इज ऑक्सीडाइज्ड बाय Na2O2 टू गिव क्रोमियम +6, क्रोमेट बनता है और बेसिक मीडियम में सोडियम क्रोमेट विल फॉर्म अ येलो सॉल्यूशन। समझा? देन क्वेश्चन नंबर 12, which will not give positive chromyl chloride test. Heavy metal chlorides do not give chromyl chloride test। किया था ना हमने ये, ठीक है? क्लियर है 12th प्रियांश? ठीक है, फिर 14th क्वेश्चन, 14th हो गया। 15th, NH4Cl and NH4OH। NH4Cl along with NH4OH, it is a reagent for group 3। ग्रुप 3 के कैटायंस कौन से हैं? ग्रुप 3 प्रेसिपिटेट होगा, ग्रुप 4 5 6 प्रेसिपिटेट नहीं होगा, तो एल्यूमिनियम विल बी प्रेसिपिटेटेड। समझा? 15th, aqueous ammonia is same as NH4OH। 14th क्या है? When bismuth chloride is poured into a large volume of water, a white precipitate is obtained due to hydrolysis, bismuth oxychloride। ये भी कराया मैंने। बिस्मथ क्लोराइड में एक्सेस वाटर ऐड करके थोड़ा बहुत हीट करेंगे, इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज अ वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो 15 तक हो गया। नेक्स्ट डाउट बोलो, 20 तक और कोई डाउट? 19th, 17th क्या है? CuSO4 decolorizes on addition of KCN because Cu2 plus excess Cn minus, ये किया हमने ये रिएक्शन, ठीक है? excess Cn minus, it results in formation of a colorless complex CuCN43 minus along with evolution of cyanogen gas। The product is B, Cu2 plus gets reduced to form CuCN43 minus। कराया तो ये मैंने रिएक्शन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, a white precipitate obtained in analysis of a mixture becomes black on reaction with ammonium hydroxide। I think Hg2Cl2 होना चाहिए, mercurous chloride। mercurous chloride in presence of ammonia undergoes disproportionation, कराया था मैंने। NH4OH is nothing but ammonia, NH4OH is nothing but aqueous ammonia, and it results in formation of HgNH2Cl along with formation of Hg। It becomes grayish or blackish due to formation of this, it undergoes disproportionation। ठीक है, समझा? Then question number 20, a mixture of two salts is not water soluble but dissolves completely in HCl to form a colorless solution। AgNO3 and KBr, इसमें से AgNO3 वाटर soluble है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, बिकॉज मिक्सचर शुड नॉट बी वाटर सॉल्युबल। एक सेकंड, मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट्स इज नॉट वाटर सॉल्युबल बट डिसॉल्व्स कंप्लीटली इन डाइल्यूट HCl। तो इसमें दोनों ही सॉल्युबल है, बोथ AgNO3 एंड KBr सॉल्युबल सॉल्ट्स, तो ये तो नहीं आएगा। बी ऑप्शन देखेंगे, मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट्स इज नॉट वाटर सॉल्युबल। BaCO3 और जिंक सल्फाइड का सॉल्यूशन दोनों वाटर सॉल्युबल है, ठीक है? dissolves completely in dilute HCl, BaCl2 is completely soluble, ZnS is completely soluble, तो बी ऑप्शन आ सकता है। इसमें बेरियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड दोनों कलरलेस सॉल्यूशन बनाते हैं। सी ऑप्शन देखेंगे तो FeCl3 फॉर्म्स अ येलो सॉल्यूशन, तो सी ऑप्शन नहीं आएगा बिकॉज इट शुड गिव अ कलरलेस सॉल्यूशन। डी ऑप्शन देखेंगे तो मैंगनीज नाइट्रेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट दोनों सॉल्युबल है, तो मिक्सचर शुड बी वाटर इनसॉल्युबल, तो डी ऑप्शन भी नहीं आएगा। समझा? 20th क्वेश्चन समझा? 19th में अभी भी डाउट है? अशरा, तुम्हें 19th में अभी भी डाउट है? ठीक है, 21 क्या क्वेश्चन है? ब्लैक प्रेसिपिटेट डिसॉल्व्स इन HNO3 टू गिव
gives B, which gives white precipitate C with NH4OH on, नहीं, एक second. On reaction with HCl solution, D gives on the second. Black precipitate dissolves in HNO3, gives B, which gives white precipitate C with NH4OH. On reaction with HCl gives solution D, which gives white turbidity on reaction with water. I think bismuth है ये. Black precipitate is Bi2S3. It is a test of bismuth. Black precipitate is Bi2S3. It dissolves in HNO3 to give bismuth nitrate. ठीक है? Which gives white precipitate with ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide के साथ bismuth hydroxide का white precipitate बनेगा. HNO3 से it will give BiNO3 whole 3. NH4OH के साथ it will give BiOH whole thrice. It dissolves in HCl to give BiCl3 aqueous. On addition of water, it will undergo hydrolysis to give a white precipitate. समझा? 21. Next. और कोई डाउट है 31 तक? बोलो अशरा, क्या बोल रहे हो? Sir, in 19 question it is NH4OH, then it is aqueous NH3. In 27 NH4OH और aqueous ammonia सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं है. Sir, if in the question 27, it means it is solid NH3. कहाँ लिखा है solid NH3? Sir, then we have to take it aqueous only. NH3 solid होता है क्या? NH3 गैस होता है. हाँ, yes, obvious. ठीक है. Which of the following leaves a black residue on addition of NH3? ठीक है, अमोनिया ऐड करो चाहे aqueous NH4OH ऐड करो, ठीक है, ब्लैक प्रेसिपिटेट बनेगा. गैसियस अमोनिया भी ऐड करोगे तो भी ब्लैक बन जाएगा. ठीक है Okay, sir. फिर 29th बच गया. An orange red precipitate obtained by passing H2S through an acidified solution. तो ये antimony का orange बनता है. Antimony gives orange precipitate with H2S in acidic medium. Group 2B का cation है. ठीक है. Sb2S3 and Sb2S5 are orange precipitates. 30 में क्या? White crystalline precipitate dissolves in hot water. तो PbCl2 होना चाहिए. It dissolves in hot water. On passing H2S, a black precipitate is obtained. Black precipitate dissolves completely in hot HNO3. On adding a few drops of conc H2SO4, PbSO4 precipitate is obtained. ये PB का टेस्ट है. PbCl2 dissolves in hot water. ठीक है. 30 क्लियर है? हो गया अभी डाउट्स? गेट इक्विप्ड. चलो गेट इक्विप भी पूछ लो. बोलो गेट इक्विप में डाउट्स. सॉल्युबिलिटी इन वेरियस एसिड्स मैंने सब लिखाया है, वैसे कंपेयर करेंगे कि कौन सा किस में डिसॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है. हर प्रेसिपिटेट्स के लिए अलग अलग से किया है हमने. we'll have to read that properly to predict whether it will dissolve in an acid or not. गेट इक्विप में डाउट्स बोलो. क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है गेट इक्विप में. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज कलर्ड. क्या डाउट है इसमें? ठीक है. जिंक और लिथियम के सॉल्ट्स कलर्ड नहीं होते. पोटाश एलम, पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम, उनके सॉल्ट्स भी कलर्ड नहीं होते. ट्रांजिशन मेटल आयंस विल बी कलर्ड. तो कोबाल्ट आएगा 1 का सी. Question number 2. FeSO4.Al2SO4 whole thrice and chromalum. Chromalum is K2SO4.Cr2SO4 whole thrice. दोनों को मिक्स करके Na2O2 ऐड करेंगे तो Na2O2 plus water gives NaOH. ठीक है. NaOH plus H2O2 और NaOH will give precipitate, hydroxide precipitates. अभी ध्यान से देखो,
इसमें फेरस आयंस प्रेजेंट है, फेरस आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड टू फेरिक आयंस, peroxide में Fe2 plus will be oxidized to Fe3 plus and Cr3 plus will be oxidized to +6, CrO4 2 minus, chromium gets oxidized to +6. तो we get sodium chromate, sodium chromate का yellow precipitate बनेगा, we'll get iron hydroxide जिसका brown residue बनेगा. समझा क्वेश्चन नंबर 2? नेक्स्ट, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में और कोई डाउट है? What will be the color of solution when MnOH whole twice, question number 10, is treated with concentrated HNO3 and sodium bismuthate? Sodium bismuthate oxidizes manganese to +7, resulting in formation of a purple color of HMnO4. ठीक, कराया तो है मैंने ये मैंगनीज के टेस्ट में, either using PbO2 or sodium bismuthate. ठीक है, manganese can be oxidized to +7. Question number 9, salt formed when warmed with zinc and NaOH gives a gas that turns a filter paper soaked with K2HgI4 brown. The gas is ammonia. Salt contains nitrite or nitrate ions. Salt responds to brown ring test when acetic acid is used. यानी nitrite ion, it is nitrite ion. ठीक है, nitrate responds to brown ring test in presence of H2SO4, concentrated H2SO4. Nitrite gives the brown ring test in presence of acetic acid. The anion in the salt must be nitrite. ठीक है, समझा? चलो अभी इतना ही करेंगे, बाकी डाउट लेक्चर में पूछना. नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट विद डी एंड एफ ब्लॉक. I have not summarized the solubility in various acids, but when we have talked about precipitates, ठीक है, in individual precipitates we have specified कि which precipitate will dissolve in which reagent. कोई HCl में डिसॉल्व होता है, कोई H2SO4 में डिसॉल्व होता है, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से डिसॉल्व होता है. तो ये सब हमने किया है अलग से. मोस्टली अगर HNO3 में डिसॉल्व हो रहा है तो ऑक्सीडाइज होकर डिसॉल्व हो जाता है, या फिर नाइट्रेट फॉर्म होकर डिसॉल्व हो जाता है, या क्लोराइड फॉर्म होकर डिसॉल्व हो जाता है HCl में. H2SO4 में सल्फेट फॉर्म होकर डिसॉल्व हो जाता है. ठीक है, चलो थैंक यू, मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ अभी.